Hey guys, I had so much fun in taking it slow podcast. बहुत ही मजा आया. दोनों ही काफी candid और chill बंदे हैं. You should definitely follow this stuff. Like them, like their video if you found anything valuable, and also subscribe to that channel. It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. विशु भाई क्या हालचाल? यार बहुत ही खुशी वाले हाल है मेरे। काफ़ी अच्छा गया ये हफ्ता। अदानी विलमार का आईपीओ आया था। तो उसमें मेरे को पता था यार, अदानी की कंपनी है, 2024 से पहले तो बढ़ेगी। The only downside that I had was कि एक तो मेरे को पहला आईपीओ मिल गया, वो खुशी की बात थी। लाइफ का पहला आईपीओ मिला मेरे को, लेकिन एक लॉट साइज 15,000 का ही होता है। तो मेरे को लगा यार ये 2 गुना 4 गुना भी हो जाएगा तो क्या मतलब 15,000 ही 30,000 रुपए ही होंगे। सो मैंने उसमें अपने हिसाब से बहुत सारा पैसा लगा दिया, जो कि था 1 लाख रुपए बस। मैं अपने पूरा जितना मैं लगा सकता था वो 1 लाख रुपए थे, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश करके एंड फिर उसमें काफी सही रिटर्न है, ऐसे 50% टाइप, तो वो 50,000 हो गए। तो मैं अपनी सपने की दुनिया में चला गया कि भाई यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मेरे पास 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता और मैं 2 साल मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और फिर मैं ऐसे ये 2 दिन का प्रोसेस था, ठीक है। ये 1-2 घंटे का प्रोसेस नहीं था, ये 2 दिन का प्रोसेस था कि यार अच्छा अगर मेरे पास फिर 5 करोड़ रुपए होते तो मेरे पास 2.5 करोड़, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मैं 5 करोड़ रुपए को 10 साल काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर बेसिकली तेरा थॉट प्रोसेस तुझे काम नहीं करना है। हाँ, कि मेरी पैसिव इनकम हो जाती। तो मतलब फिर ना मैंने अपने आप को फिर समझाया, मतलब नाउ सैनिटी किक्ड इन। आई वाज लाइक कि भाई रुक जा कि ये ऐसे कभी भी खत्म नहीं होगा, और तू एक्चुअली रीजनेबल फाइनेंस की बातें और एडवाइस देता है लोगों को, तो वापस आ जा, कोशिश करता है। हाँ। तो हमारा वाला तो जो आज का गेस्ट है, आई थिंक आई नीडेड दैट टू काइंड ऑफ एनफोर्स इट अगेन ऑन मी कि भाई रुक जा। एंड काफी fun episode था यार. So we've obviously spoken to Anshuman Sharma, who's the brains behind a number of things that you consume about finance on a daily basis. If you are even remotely into consuming content about finance, if you consume awareness videos like from a CoinDCX, or if you are into Honestly by Tanmay Bhatt, so उनके सब pages का content वो बंदा इकलौता run करता है. He's the guy behind that. So we spoke to him and काफी varied discussions पे, varied topics पे discussion हुआ, right from his journey to streaming में कैसे घुसा, cold emails का कितना फायदा होता है. So वो सुन के मुझे बहुत personally अच्छा लगा, cold emails का फायदा होता है. और अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने अपनी इस स्टोरी से सेगवे कर दिया कि हम डायरेक्टली गेस्ट पे चले जाएंगे और शायद मैं डैड जोक से बच जाऊंगा। क्या मुझे सही अच्छा लग रहा है क्या? वो तो तू नहीं बचेगा यार, वो तो कोई नहीं बचेगा। So are you ready for this week's dad joke, Vishu? Rhetorical question. Of course you are. So I look forward. I told my wife that she was drawing her eyebrows too high. She looked surprised. Oh, that's nice. That's settled. Anyway, enough of our goofiness. Don't forget to hit that like button and subscribe to the channel if you're new. It does help us get found in the YouTube algorithms. Also, leave the feedback for us in the comment section down below. How did you like the episode? Anything that you want to tell us, reach out to us, leave it in the comment section below. So without any further ado, let's dive into it, people. Our guest today is someone who says he wants to make finance a part of pop culture. And he's doing more than his bit. He's a main content provider for companies like Take a Tip, CoinDCX, Honestly by Tanmay Bhatt, Clueless About Money, and a lot more. He's a member of Super Team DAO, which is a Discord group of freelancers in the crypto space, which is gaining traction by every second day. Every day he streams on his YouTube channel just to impart free knowledge to newbies like you and I. And more importantly, he's an absolute hoot to speak to. It's a huge pleasure to welcome onto the stream Anshuman Sharma. Hey man, how are you? All good. Thanks for the generous. काफी अच्छा लगता है ना सुन के
इतनी इज्जत नहीं दी है, इतनी इज्जत नहीं दी है मुझे. So every time someone gives me a little bit of इज्जत, I'm like, हाँ, flattered. You have won me. You have won me. मतलब दिस हैज बीन भाई दुजूस टैलेंट यार. मतलब इवन जो बड़े बड़े से एक्टर्स आते हैं ना, ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स भी, इवन देयर लाइक यार ये मेरे को ना रिकॉर्ड करके भेज दियो, मैं अपने जो पहला अगला ऑडिशन होगा उससे पहले मैं ये दिखा दूंगा. The benchmark is now very high. Very high. अमेजिंग टैलेंट यार. अंशुमन, आज की स्ट्रीम हो गई यार. मतलब रोज तू 10:30 बजे स्ट्रीम करता है ना? रोज 9 to 10:30, Monday to 9 to Friday 10:30. stream करता हूँ. हाँ, ट्राई कर रहा किस हूँ. बारे में It's स्ट्रीम a very करता है यार good अंशुमन? हाँ, मतलब टॉपिक्स कहाँ से आते हैं रोज के लिए? So I think a lot of it is also from the past, because अगर मैं स्ट्रीम के पहले मेरा नॉर्मल काम भी होता है तो मैं हर दिन स्ट्रीम के लिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता. So generally it's just, you know, because I have been writing scripts for the last 2 years, बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं. मतलब मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा मतलब फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, ये सब डोमेन में बहुत ज्यादा लेगेसी नॉलेज है, तो मैं वही यूज करता हूँ. अभी बहुत टाइम है, रोज करना है स्ट्रीम, सो आई जस्ट पिक वन टॉपिक फ्रॉम माय, यू नो, हाउ डू आई से इट, फ्रॉम द पास्ट. एंड अगर कोई न्यूज आ जाती है, तो नथिंग लाइक इट. सो टुडे आई स्पोक अबाउट द TCS बायबैक. ठीक है, संडे एबीजी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था. आई न्यू इट कि आज इसके बारे में ही स्ट्रीम करना है. एवरीवनस क्यूरियस, I'll just make it easier for them. लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा. Exactly. यार हम लोगों को भी हर वीक पता है, यही लगता है कि आज इस बार किस बारे में बात करें. टॉपिक्स नहीं मिलते यार. तेरे को तो डेली करना पड़ता है. सो I can genuinely see what the challenge can be. तूने बताया you're an economics major, so tell us a little more about that. क्या किया है? What is your educational background like, and how did you get into the field of finance? Okay, so I did my economics graduate from this college in Bombay called NMIMS. This college in Bombay. मीठी भाई के सामने वाला कॉलेज जो है, यही बोलना पड़ता है, मीठी भाई. Better known as मीठी भाई. Exactly. मैं जब पहली बार मुंबई आया था ना, मतलब आई केम टू मीट भैया, अमर पाव भाजी NMIMS में थे. हाँ, अमर तो पाव भाजी, sorry, yes. इन्होंने मेरे को ये बोला था कि ऑटो वाले को एयरपोर्ट पे ये नहीं बोलना NMIMS जाना है, तो ये बोलियो कि मीठी भाई कॉलेज जाना है, वो तभी समझेगा. Because this comes from an experience, right? हम बोलते हैं कहाँ जाना है, एनमी क्या सबको मीठी भाई पता है. पूरे बॉम्बे में सबको मीठी भाई पता है. So it's a safer bet. नहीं, सो हम लोगों का जो पहला हम लोगों का 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें पहला साल हम लोगों ने लिटरली उसी बिल्डिंग में पहला साल निकाला था, जिसमें 34 कॉलेज थे एक 17 फ्लोर की बिल्डिंग में. there are literally 33 colleges going on there. This is not an exaggeration, this is not a joke. There are literally 33 colleges and in it's that building. believable because it is in Mumbai, and Mumbai real estate rates सबको पता है, तो it is believable तो होता है. हाँ यार, ये तो हम लोग ने मीठी बाई के ऊपर वाले फ्लोर्स में ही अपना पूरा पहला साल निकाला है. So my college was one of those 34 ones. 6th floor में था. And actually my idea of a college was inspired a lot from the content I consumed, right? कि गार्डन में बैठे हुए हैं, गिटार बजा रहा है कोई मैं हूँ ना, देखिए यार. हाँ, मैं हूँ ना, और मेरा ये एक्सपेक्टेशन था. और फिर जब मैं एनरोल करने जाता हूँ, आई सी कॉलेज जिसमें हर जगह से बच्चे आ रहे हैं, एंड देन समवन्स लाइक योर कॉलेज विल बी इन द 6th फ्लोर. आई गो टू 6th फ्लोर, एंड टू माय सरप्राइज 6th फ्लोर के भी सिर्फ 6 क्लास वाज माय कॉलेज. The other part of 6th floor was 2 or 3 different college. So it was वो 6 क्लासरूम्स में भाई एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए तेरा कॉलेज होगा, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में तो कोई अलग कॉलेज होगा. yes. शाम के लिए. और ये इसमें से कुछ भी एग्जैजरेशन या मजाक नहीं है, ये सच है. बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट 34 कॉलेजेस से ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि उधर एटलीस्ट 4 से 5 यूनिवर्सिटीज है. There's NMIMS, there is I think मीठी भाई यूनिवर्सिटी, there is a little bit of MU. तो बहुत सारी चीजें चल रही है वहां पे. सही है. हाँ, तो वहां पे तूने इकोनॉमिक्स मेजर किया. वहां पे एजुकेशन मिला होगा. मतलब वहां पे ऐसे बस और कुछ करने का काम मन नहीं करता. वहां पे यार गिटार नहीं हो सकता, तो आप पढ़ लो. कुछ भी नहीं था. More than that, there was 75% attendance as well, right? And 50% passing था. तो मतलब circumstances ऐसे थे कि तुम या तो पढ़ लो या तो तुम चले जाओ.
एंड द बेस्ट पार्ट वाज मैं फिर भी नहीं पढ़ा, आई चोज कि नहीं पढ़ना, ठीक है. बट व्हाट आई डिड इज एवरी ईयर आई इंटर्नड. सो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में मैं कोटक महिंद्रा में इंटर्नशिप कर लिया, वेयर माय ओन एंटायर वर्क वाज 19 साल का था, कोई भाव नहीं दे रहे थे, राइट, बिकॉज इट वाज अ ब्रांच, एवरीवन वाज बिजी सेलिंग बैंक अकाउंट्स. सो आई जस्ट फाउंड अ गाय एंड मतलब आप जो भी करोगे ना मैं शैडो करूंगा. So he used to go and try to sell insurance, mutual funds and everything. And that was my first introduction to financial knowledge. क्योंकि first year के college में economics था, सिर्फ pure economics था. So I learned about hedging, mutual funds, insurance. And then second year में college में भी finance शुरू हो गया. So banking आ गया, investments आ गए. So मेरा interest और थोड़ा बढ़ गया. Then I interned again. So NMIMS में अगर आपको पता, there was this learning curve academy, which was like a group of 2 women who came and they taught everyone about personal finance, investor awareness चल रही थी, ठीक है. So I just applied to them कि मुझे mutual funds के बारे में थोड़ा बहुत पता है, let me help in the research. So I just started writing for their blog और उनके content के लिए मैं content के लिए contribute करने लगा. So उधर और interest आया, फिर college खत्म हो गया basically. हाँ. फिर college खत्म हो गया. उसके बाद क्या कॉलेज से डायरेक्टली निकलते ही क्या? कॉलेज से डायरेक्टली निकलते, सो बेसिकली कॉलेज की एक और चीज, एनएमआईएमएस इतनी प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, मतलब लोग बहुत एग्जाम देके आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद प्लेसमेंट नहीं होता है, आप देखोगे ना, वाओ, मतलब क्या चल रहा है, मतलब अलग ही दुनिया चल रही है. सो माय एंटायर अंडरस्टैंडिंग वाज ये 3 साल पढ़ना है एंड देन प्लेसमेंट में बैठना है और फिर पैसा आएगा, फिर तो कुछ, फिर तो चिल है. बट या एवरीथिंग, ऑल माय एक्सपेक्टेशंस वर शैटर्ड. सो देन I didn't sit for placements because जो आए थे मुझे वो करना नहीं था. 1-2 जगह बैठा था but things didn't work out. कोई लॉक इन मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था. So I didn't कोई go GD ले रहा था. Then GD is still fine. GD कर लेंगे, पर कोई अगर बोल रहा है 2 साल तक ऑफिस छोड़ ही नहीं सकते. That's a very big challenge. So this is very personally attacking to me as well because I was unfortunately a part of the placement committee अपने MBA colleges में. तो तूने बोला placement तो wow, amazing, okay. No, but of course MBA की ठीक होती है यार. Bachelor's तो बहुत ही अलग है. Yeah, so वो comparable भी नहीं है, वो बिल्कुल comparable नहीं है. उनका वही selling point है ना, उनका pitch is the MBA. Bachelor's तो सब side products है, उसमें क्रॉस सेल हो जाता है, बट एमबीए तो उनको रेपुटेशन मेंटेन करना ही पड़ेगा. ब्रेड एंड बटर वही है. हाँ, एग्जैक्टली. सो हाँ, कॉलेज खत्म हुआ, फिर बाद में आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू अ फ्यू प्लेसेस. देन देयर वाज दिस इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इन थाने एंड दे वर लुकिंग फॉर अ सेल्स एंड research kind of a person. I applied there. I started working for like 1.5 years. I worked for 1.5 years. I was every day, my 9 to 5 job was just to interact with retail investors every day, understand their problems and sell their products. So I feel उस टाइम पे initially बहुत मजा आ रहा था, बाद में growth नहीं हुआ तो छोड़ दिया. But hindsight में, right, if I can connect my dots to content, it's only because of that job. Because I know what is the pain point. I know that a random retail investor's 5th question will be, what is better, SIP or mutual funds, right? So if you understand if you know this, कि क्या पूछने वाले हैं वो, क्या पूछा यार. This is a very common question भी कितना सही पूछा यार कि SIP या म्यूचुअल फंड. तुम क्या, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. हाँ, तो पूछ रहे हो कि शेयर अच्छा है या सेब, क्या है ये? भाई उनको पता ही नहीं कि SIP is not even an investment product. So I told them कि SIP is a mode of investing in products like mutual funds. तो ऐसे करके समझ आ गया कि हाँ, I can make this easier for people. Right. And there is a need. मतलब you must have understood कि भाई बहुत ज्यादा need है भाई. अभी भी बहुत ज्यादा need है. मतलब यार तू नीड की बात कर रहा है, तो अभी इन 3 लोगों का सैंपल सेट ले, उन 3 में से एक को कुछ नहीं पता है क्या करना होता है, किस बारे में बात करनी होती है, क्या पूछना होता है. ये 1/3 तो इसी सेट में से आ गया. या मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, मेरे को लगता है कि मैं पढ़ा लिखा, मैंने MBA किया है भाई, मुझे पता होना चाहिए ये सब, मुझे कुछ नहीं पता है.
It's And the even exposure, right? Exposure ही नहीं है. Yeah. हाँ, नहीं होता. है ही नहीं मतलब मेरे को exposure. भी इसलिए पता है क्योंकि नॉट बिकॉज आई डिड माई एमबीए इन फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं पता होता. इवन सीएस डोंट नो अबाउट पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि मेरे को इसलिए हो गया क्योंकि मेरे साथ जो कंपनी में जो लोग थे ना, दे हैड सम इंटरेस्ट इन टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स वगैरह, सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया. वरना तुम एमबीए कर लो, एजुकेशन में देयर इज वेरी लिटिल नॉलेज यार, जितना तुम Yeah, जाते हो. और yeah. उसके बाद भी अपना माइंडसेट ठीक रखना एंड नॉट टू गो आफ्टर. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि कितनी जल्दी आपको समझ आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. Yeah. कि Yeah. ये भी I नहीं also पता feel होता that लोगों को. personal finance is one area where knowing what to do is never enough. Like, you know, knowing what to do and doing it, doing the right thing are two absolutely different areas. And I feel that knowledge is just 20%, personal finance is 80% behavior and just 20% knowledge. कि Exactly. मतलब अगर तुम लोग discipline, and this comes from my experience because I did economics, finance. उसमें personal finance के भी courses थे, but in my first job I was broke all the time, and it was not like I was earning less. Yep. It's just that I Yep. couldn't manage my money. I didn't know how to manage money. So it is difficult. It is extremely difficult. हाँ, और मतलब मैंने ऐसे लिंक्डइन में ना एक पोस्ट भी डाला था, एक पोल टरेगा कि व्हाट डू यू थिंक इज नीडेड, इज मोर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन इन्वेस्टमेंट या फिर इन योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी. एंड द टू ऑप्शंस वर फाइनेंशियल नॉलेज एंड द सेकंड ऑप्शन वाज एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट. एंड क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आई फील कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट Way दैन more. फाइनेंशियल नॉलेज. हाँ, लेकिन द Yeah. मतलब जो रिजल्ट था दैट वाज 50-50. वो तभी तो ये वाला चीज समझाना कि यार भाई अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर आप ठीक रखो और पेशेंट रहो, देन that is what will that's make you enough. successful. Yeah. That's like 3/4 of the battle won. वो हो जाएगा काम फिर. Right. तो यार कंटेंट क्रिएशन कब शुरू करने का सोचा और कीड़ा कहाँ से आया दिमाग में कि हाँ ठीक है तो जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट माय ट्रू कॉलिंग और मुझे एक वेबकैम के सामने बैठ के लोगों को ज्ञान देना है, ये सब कब दिमाग में आना शुरू हुआ? Oh no, ये तो बहुत recently आया था. तो basically I quit my अच्छा. job in January 2020. I had no plans. और मेरे पास 3 महीने के savings थे कि, और मैं थाने Nice. में रहता था. I had my expenses. I was not living with my parents or anything. So I knew कि ये 3 महीना है मेरे पास. ये 3 महीने में कुछ करना है जो impactful हो, या फिर छोड़ के चल जाएंगे, अहमदाबाद चल जाएंगे, MBA कर लेंगे, accept कर लेंगे कि नहीं हो पाएगा. ठीक है? Because I realized that in that job, right, I was not moving the needle. Even if my sales record was good, okay, but I was not able to grow myself. I was not able to learn, and at the same time, I didn't even see the firm growing. So what's in it for me? वो हो गया. So I quit without any plans, and for 2 months straight, मैं सिर्फ companies और influencers अलग-अलग को cold email करता था कि ये है, like ये app. So there was this company called Mutterfly. It's a company in Bombay which rents discretionary products, PS4, camera, ये सब. And I thought that idea is fantastic. But there were a lot of loopholes. तो मैंने सब बताया कि ये business है, ये proposition है, just take me as an intern. I want to work with you and I want to learn. ऐसा. तो ऐसे अलग-अलग लोगों को मैं cold email करता गया. And then one fine day, Tanmay put up a story saying that I am planning to open a finance channel, start a finance channel, and I need someone from CNBC or some journalist background to be my producer. I sent him an email saying that I've done all this, and this is why you do not need someone who is a journalist and who is working at CNBC, because there's a lot to unlearn before you start teaching people in their 18 to 25 years old. So I sent him a cold email. That cold email, like he replied, he liked something probably. He replied, and then धीरे धीरे we started working together. So in March 2020, I started. ये बहुत ही लंबा लेप ले लिया तुमने, बहुत ही एकदम से. He replied to an email and then we started working together. थोड़ा सा और डिटेल में बता, मतलब what did he like about what about your mail and मतलब बहुत ही ये तो वो तो तन्मय बता सकता है. नहीं अरे नहीं मतलब ये बहुत ही ऐसे अनबिलीवेबल सी चीज होगी ना कि कोल्ड ईमेल से एकदम लीप ऑफ इतना फेथ हो गया कि अब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तो उसके चैनल पे कंटेंट बना रहा है. कोल्ड ईमेल इतना भी कोल्ड नहीं था क्योंकि he said that there's a need. He put up a story, right? And see, I feel that whenever you are emailing someone whose time is important, you have to add more value per unit of time.
But Hmm. right now, I also get a lot of cold emails, and every email starts with the first 45 seconds are just dedicated to how big of a fan Hi. they are. Yes. Hi. Right. Hello. And I always feel that अगर अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर को फैन लव चाहिए, वो लाइव स्ट्रीम कर लेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे. When they open their work email, they are here to do shit. So मेरा ये था, I think what worked for me there was I was to the point कि ये है, I saw this is in react, this is in related regarding this. Then I gave a small 2 paragraph का background. मैंने sales किया है, मैंने retail investor से बात किया है, मैंने CFA economics किया है, तो मेरा knowledge भी एक levels के ऊपर है, so मतलब content बन जाएगा. बात And तो then सही. so these were the 2 things. Then I said कि what is the problem in your initial proposition? क्यों आपको CNBC और ये नहीं लेना चाहिए? Because वो age group के नहीं है. They are used to using some kind of jargons. They are used to, a format, और वो format शायद नए लोग में काम नहीं हाँ. करेगा. And that और works उनको probably. आदत भी वो है, मतलब एंड यू आर राइट कि मतलब उन लोगों को ऐसी आदत है कि उनको रोज के लिए कंटेंट बनाना है, सो दे हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ बुलशिट इन देयर कि भाई ये टारगेट Yeah. प्राइस होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये करो मतलब हर रोज का कंटेंट वरना नहीं बनता है यार पूरा Also the fact 24 that घंटे. the traditional media, finance media, uses a lot of jargons like consolidation हो गया, fiscal year हो गया, repo rate हो गया. All these words, when they use it after a degree in economics or finance, is okay. But your viewer is an average person who only invests passively. They do not have time to keep understanding repo rate क्या होता है. मतलब एक मैं example देता हूँ. This is something which is prevalent. So whenever there is a result like कि inflation क्या है या फिर कुछ भी है, तो वो ऐसा लिखते हैं कि in the last 16 quarters, in the last 12 quarters, HDFC Bank has given this return. Can't you simply say in the last 3 years? 3 years, yeah. मतलब ये थोड़ा unnecessary है. I know it's a small example, but ये थोड़ा unnecessary है. तो ऐसा लग रहा है कि number of words भरने की कोशिश की जा रही है. Also the fact that the entire finance industry has operated on commissions, which means that जितना लोग, it was a zero sum game. जितना लोगों को कम पता होगा उतना हाँ. ज्यादा कमीशन और अनशन चार्जेस हम कर सकते, ले सकते. So सही में yeah, हाँ, दैट्स ट्रू यार. एंड आई थिंक अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एंड मतलब of course. जीरोधा के साथ और फिनशॉर्ट्स ने जो डिट्टो इंश्योरेंस निकाला है, दैट्स बिल्डिंग अमेजिंग रेपो विद पीपल लाइक अस कि Yeah, भाई yeah. इंश्योरेंस भी ऐसे बेचना नहीं है, तुम समझाओ पहले आराम से. क्योंकि पहले वो प्लान्स कैसे होते थे भाई, जितना बंदा कम समझे उतना अच्छा है कि हम उसको उतना बेकार प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि उस बेकार प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा मेरे को. Exactly. तो आई थिंक इट वाज अ वेरी मतलब एकदम ऑपोजिट था. जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज में ना, जैसे पेडिलाइट में हो आप या एफएमसीजी में, यू फील है कि यू बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर. लेकिन आप इंश्योरेंस सेक्टर देख लो कि उसमें यही होता है लोगों को, यार मैं बीमार होऊंगा तो मुझे पता है कि वो मेरा नहीं करेंगे यार, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा डालेंगे. And I feel आई that थिंक दैट्स चेंजिंग नाउ. हाँ. एग्जैक्टली, आई फील दैट कोई भी बिजनेस में ना, अगर दो पार्टनर्स के इंसेंटिव्स ही अलाइन नहीं है, तो फिर वो इतना सेंसिबल नहीं होता. सो फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड का जो रेगुलर स्कीम होता है और डायरेक्ट प्लान्स होता है, ठीक है. डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो इज लेट्स से 1%. सो इन केस ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, देयर इज एन एजेंट हु इज रेकमेंडिंग यू दोस म्यूचुअल फंड्स, एंड फॉर दैट सर्विस देयर इज अ 0.5% या 1% का एक्स्ट्रा कमीशन. ओके, अब म्यूचुअल फंड मैनेजर, आपका एडवाइजर तब ज्यादा पैसा कमाएगा जब उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो. बट दैट एक्सपेंस रेशियो इज गोइंग अवे फ्रॉम योर टोटल फंड वैल्यू, which means that he will win at your cost and you win when you get him out of the system. So ये zero, एकदम ही zero sum game है ये वाला. तो इसमें ये this is not sustainable, and this was over time. I think internet ने constantly last 10 सालों में they have made all those businesses redundant which worked on information symmetry. You know, like the reason why The reason why mobile recharge के लिए हम लोग के पास एक दुकान थी is because we didn't know there were websites जहाँ पे आप recharge कर सकते हो, and then Paytm came and disrupted the system. So finance के साथ भी होना ही था ये चीज एक टाइम पे. तो हाँ, मतलब आई स्टिल सी कोई शॉप जिसमें होता है कि भाई फॉर्म्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी लगाए होते हैं, मतलब ऐसे फोटो स्टेट वाले बंदे ने ना कि यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम कि भाई. हाँ,
but हाँ मतलब इंफॉर्मेशन सिमेट्री में बेसिकली हर जगह से मिडिलमैन एलिमिनेट हो रहा है अभी। बाकी सब छोड़ यार, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, एयरलाइन की टिकट्स अगर तुम्हें बुक करी होती थी पहले तुम्हारे पास 50 एजेंट्स होते थे उन चीज़ों के यार। exactly तो रेलवे टिकट्स बुक करनी होती है तुम्हारे पास एजेंट्स, अगर जब तक एजेंट से थ्रू नहीं हो रहा है तब तक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत टॉप चीज़ है। तो अभी यू डू इट हाँ एट अ टाइप ऑफ, तो मिडिलमैन एलिमिनेशन इज द ओवरआर्चिंग हाँ नैरेटिव। आई आल्सो और अभी yes हमारे फाइनेंस वाली इंडस्ट्री में मेरे को लगता है कि ठीक है, इंटरनेट वाली कम्युनिटी को हमको लगने लग गया कि भाई हाँ काफ़ी उनको समझ आने लग गया है, बट आई स्टिल फील कि अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है यार। मतलब देयर yeah इज अ नहीं, इट yeah इज लॉट ऑफ जस्ट द बिगिनिंग, ऑडियंस। इट इज हाँ हाँ जस्ट द इट इज। बिगिनिंग। हाँ वो very पिवटिंग small वाला पॉइंट से beginning बहुत, हाँ बहुत आगे अभी हम, कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ गैप एंड देयर इज स्टिल अ नीड ऑफ क्रिएटर्स लाइक अंशुमन कि भाई और लोगों को पता चले कैसे ना कैसे। yeah but I think Jio has also helped, right? The access has अरे increased, हाँ the access has increased. तो अगर हम लोग 2015 में क्रिएटर्स होते तो आई थिंक टीयर 1 सिटी हाँ के बाहर कभी कुछ कभी नहीं होता, पहुंच ही नहीं पाते, राइट? नहीं होता। व्यूअरशिप, बट आज के दिन इट्स चेंजिंग, टुडे इट्स चेंजिंग. देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स फॉर ईच स्टेट, लोकल क्रिएटर्स जो सिर्फ यप मराठी यप में कर रहे हैं या फिर कहीं भी कर रहे हैं और वो अपना कंटेंट बना रहे हैं. सो दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. when you eventually started streaming or eventually started creating digital content for all these companies, you make content for Honestly, you make content for CoinDCX, you make content for Take a Tip, you make content for, so are you at a stage now where you feel that it is the sustainable thing for you to do for say the next 5-7 years before you think of doing something again? Are you at a self-sustainable stage now? Do you think that I am reasonably successful at the shit I do now? No, I don't. See, I always feel that in the B2B game, right? अगर YouTube का B2B game है, उसमें yeah, I can say that हाँ थोड़ा बहुत नाम बन चुका है, right? But I feel that B2B, the entire B2B game, at least in content, is low risk, low rewards, right? Because मेरा जितना भी बन जाए, मेरा जितना भी नाम बन जाए, मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, right? So to actually make it sustainable, I have to grow my personal brand, because इस बिजनेस में ना विद से ज्यादा मतलब ऊपर वाला वर्टिकल ग्रोथ हो सकता है, which means that if I'm charging X amount for my hour, that will increase over time, so Yeah. that's the only way that this B2B business is sustainable. So मेरा Right. personal Correct. brand जब तक मैं grow नहीं करूंगा, तब तक this I won't feel that I'm successful or something. अंशुमन आप in your career. सो डू यू मेंशन कि आप इतने सारे उनके लिए आप कंटेंट बना रहे हो, सो आर यू मेकिंग वीडियो कंटेंट फॉर देम या फिर आप ब्लॉग से लिख रहे हो? बिकॉज वीडियो कंटेंट बना रहे हो तो खुद का ब्रांड भी बढ़ रहा होगा ना। और हाँ वीडियोस, सारे वीडियोस, तो आप टिकट टिप में चल जाओ, CoinD6 में चल जाओ, फिर Affinity है, StockTwits है, सबके लिए मैं वीडियोस बना के आई एम द फेस. सो उसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर इज हाँ तो उस अ लॉट ऑफ रिकॉल, फेस रिकॉल, राइट राइट, आल्सो बिकॉज ऑफ तन्मय, राइट? उनके यहाँ भी वीडियो करता हूँ, द एवरेज व्यूज आर एटलीस्ट 100-200K. सो देयर इज फेस रिकॉल, बट आई थिंक वो जो मेरा नाम तभी लोगों को याद आएगा जब वो रात को मेरे चैनल में आके देखे. हाँ ब्रांड रिकॉल फेमिलियरिटी इज होता वेरी होना शुरू इंपॉर्टेंट. घर पे क्या रिएक्शन आता है वैसे टू द स्टफ दैट यू डू? My father works at ONGC. He's retired now, but he's from Nice. ONGC, which means a central government. मतलब job security 100 से 100% ज्यादा होगी, right? So his famous line is, तेरे job में ना warranty है ना guarantee है. Right? This is famous line. He says this and if his friends ask he क्या करता है, so his answer is simple: finance. फाइनेंस पे है. He changed जिसकी मुझे समझाना ही नहीं है. But this was first 1 year. इस साल because he has seen me grow, so now he's like हाँ कुछ तो कर रहा है. He knows what he's doing. तो अब ये है, ऐसा है. This was very different. Like I never got support from my parents because I can't even expect that. It's extremely difficult from what they have seen. And their entire understanding is extremely different. So unpe I can't even blame them. It's fine. They just worry about me. But I feel that once eventually you see that they see that हाँ कुछ stability है, कुछ कर रहा है actual में, and if their kid is actually working towards it,
once tangible results start flowing in, once you start getting recognized probably in public, अगर कहीं शादी में गए साथ में, अरे तुम तो वही हो ना जो आते हो, हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होने लग गया किसी के सामने, तब तो फिर उनको Yes, हाँ और भाई first ऐसा year कर रहा बहुत है, बार होता है। ठीक फर्स्ट है। ईयर डिसअपॉइंट होना बनता है यार, क्योंकि तुमने तो LIC पॉलिसी भी नहीं ली होगी ना। तो वही Exactly. डिसअपॉइंटमेंट इतना होगा कि यार Exactly. क्या पता नहीं तू क्या ही फाइनेंस कर रहा है अगर तू LIC पॉलिसी नहीं ले रहा तो। बट वही ना, वो सोचने का भी मौका नहीं मिला बिकॉज वो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है। LIC तो होनी ही है, LIC तो होनी ही है। वो तो मेरे But हाँ, मामा जी है, वो उन्होंने करा ही नहीं। जैसे ही उनको पता चला कि जॉब लग गई है वो आ गए थे। इतने टाइम में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता मेरी LIC हो चुकी थी। yeah, but I feel my father's conviction also increased because I handle his portfolio और उधर रिजल्ट दिख जाता है, हाँ, उधर और दिख वो जाता पिछले है 2 कि साल में हाँ, तो मार्च 2020 पिछले से 2 तो साल में काफी भी, and more than the result, right? I think it's the action. Like when the entire world is, you know, moving around, getting extremely volatile. उनको रोज कॉल आते हैं कि ये है, ये है, ये है. Then it sends me a forward कि ये करना चाहिए कि नहीं. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि be calm. हाँ, रुक जाओ। मतलब हाँ, स्टेडीनेस है, एक प्रॉपर स्टेडी स्टेबिलिटी है. सो देन इज लाइक कि हाँ, ये जो कर रहे हैं इसमें सेंस बनता है बिकॉज लॉन्ग रन में मेरे को चैन की नींद आ रही है, मतलब उनको हाँ, ज्यादा हाँ, चैन हाँ, की नींद आ रही है. सो आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट यार ये ROI. पता नहीं आपके फादर कितना अच्छे से समझते हैं, बट जो 1-2 लोग मुझसे पूछते हैं, इट इज सो हार्ड टू कन्विंस देम कि यार रुक जा। मतलब उनको मैं पहले बोल के बताया कि ये स्टॉक लेने के 3-4 साल के लिए हैं। स्टिल आफ्टर एवरी 15 डेज आई गेट अ मैसेज फ्रॉम द सेम पर्सन कि भाई अभी ये हाई है, मैं बेच दूं, फिर जब नीचे आएगा तो ले लूंगा। अब बेच दूं भाई, रुक जा रुक जा। और हर 15 दिन बाद यार। ये चीज मेरे डैड के साथ भी सेम हुआ था, बट 6 महीने के बाद आदत हो जाती इनिशियल है. स्टेजेस में, अब जब हाँ। एक्चुअल में बेचना होता है और मैं बेच रहा होता हूँ, तब भी उनका सामने से टेक्स्ट नहीं आता कि तूने अभी तक बेचा नहीं यार, इतना हाई जा चुका है. सो आई थिंक इट्स ओवर टाइम इट वर्क्स आउट. So, जब ऐसे पब्लिक में लोग रिकग्नाइज करते हैं तब कैसा रिएक्शन आता है उनका? मतलब कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली होता है वैसे ये कि व्हेन यू आर आउट विद देम एंड पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू? Oh no. This has not happened. Like अच्छा. with my parents, it has not happened because हम्म. अहमदाबाद में अभी भी मेरी जो जनता है और मैं जिन ब्रांड्स में जाता हूँ, it's 80% is still Bombay, Bangalore, Delhi. It's still that, right? So Ahmedabad में नहीं हुआ है, but it's just that my cousins, मेरे दूर के cousins, they Nice. discover me on YouTube. They The tell best their kind of parents. validation. Yeah, The best kind and of my validation. parents, their parents call my parents and बोले कि ओहो आप तो मचा रहे हो पार्टी तो नहीं. This happened recently. अरे यू हैव बिकम My दैट mom शर्मा is जी का बेटा नाउ। कि वो शर्मा जी के बेटे को देख कि वो क्या कर रहे हैं। बट so अभी रिसेंटली हुआ, मम्मी को किसी ने बोला कि ओ आप पार्टी नहीं दे रहे, ये तो कोई मचा रहा है, क्या हो रहा है. तो मम्मी बोले किसकी बात कर रहे हो? मेरी मम्मी कहे किसकी बात कर रहे हो? मुझे ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग क्यों कर रहे हो? नहीं एक्टिंग. तो मेरे को बाबू बुलाता, तो बाबू की बात करो तो ओ हाँ कर रहा है. कुछ तो कर रहा है. हाँ, उनका यही रिएक्शन है कि मतलब बिकॉज दे आर फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंस। their understanding, their tangible metrics of success are so different that they're like कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं जिससे लोगों से validation मिल रहा है. ऐसा. And that's the same metric for every parent in India यार. And maybe outside also. outside का हमें पता नहीं है. The same metric. कि भाई चाहे मतलब ऑफिस से कुछ भी आ जाए, कोई ऐसे अप्रिशिएशन आ जाए, वो नहीं मैटर करता, लेकिन पड़ोस से कुछ आ जाए वो दिन बन गया. फुल स्टेटस गेम. किटी पार्टी में अगर बच्चे के मार्क्स का बात हो रही है, mom has won the life. She has won it. yes exactly. So अंशुमन, तेरा डेली रूटीन कैसा रहता है? So शाम को 9 to 10:30 you stream every day. उसके लिए I'm sure at least 1.5 hour का prep time भी लगता होगा, उससे ज्यादा लगता होगा in fact. For the topic that you're about to speak on. I start 7:30. I start preparing for the stream. ठीक है. और सुबह तो यार 8 to 9:30 I wake up, I go for बैडमिंटन खेलता हूँ रोज, फिर आता हूँ, then I 1-2 घंटा टाइम पास करता हूँ, चिल करता है. क्या करना है, हाँ चिल करता हूँ. I feel फिर 7:30 बज जाते हैं. जरूरी होता है. फिर शाम के 7:30 बज जाते हैं. फिर 7:30 बज जाते हैं. हाँ
वही कहाँ टाइम चला जाता है मेरे को पता नहीं है एक्चुअल में. मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड बंदा हूँ, राइट? एंड द रीजन व्हाई आई एम डूइंग कंटेंट इज आल्सो बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली लेजी. आई एम एक्सट्रीमली लेजी एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी. लोगों को ये समझाना, लिखना, सो आई राइट अ लॉट ऑफ ज्ञान स्क्रिप्ट्स देना. आल्सो. हाँ, ज्ञान देना वो हो जाता है फाइनेंस के बारे में. सो आई हैव नेवर फेल्ट इन दोस लास्ट 2 years कि आई हैव डन अ सिंगल ऑनेस्ट डे ऑफ लेबर. नेवर नेवर. बिकॉज आप सोचो ना, अभी एक्चुअल में तो मेरा वर्क डे चल रहा है. 10:30 बजे मेरा स्ट्रीम था, 11 बजे 10:30 तक स्ट्रीम था, अभी 11:45 हो गया है. बट मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लोगों से बात कर रहा हूँ. सो हाँ, extremely disorganized. But yeah, I think every day I have a few, like I make at least 15 to 16 videos for brands. ठीक है, per month. तो उसका ये मतलब है कि constantly मेरे पीछे एक लगा ही हुआ है, deadline लगा हुआ है. So as after those 2 hours I start writing, I start planning, I shoot some videos, and then I look at my team. मेरे team भी है, क्या चल रहा है सबका, और उसके बाद स्ट्रीम शाम हो जाती है. एज यू सेड, शाम हो. पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह भी खुद ही करते हो यार. पोस्ट प्रोडक्शन एज इन एडिटिंग एंड ऑल. हाँ, पॉलिशिंग, पैकेजिंग, उसका सब कुछ. एडिटिंग एडिटर है, बट एडिटर को फ्लो बताना पड़ता है, चेंजेस देने पड़ते हैं. वेरी स्मॉल पार्ट, 15 मिनट्स अ डे का काम है वो. बट हाँ, एडिट नहीं करता खुद. आई हैव अ फुल टाइम एडिटर. नाइस. सही है यार, मतलब you have a proper team and also हाँ, लड़का कुछ तो कर रहा है, फाइनेंस में कुछ तो कर रहा है लड़का. हाँ, कुछ चल रहा है, मतलब पता नहीं पर कुछ चल रहा है ऐसा. एक तो टीम होने की वजह से वो भी हो जाता है ना कि खुद के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यार. भाई टीम को कुछ मटेरियल देना है तो कुछ करना ही पड़ेगा यार, वरना उनको लगेगा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. टीम को मैं जनवरी की बात बताता हूँ. जनवरी में मैं घूमने गया था, और घूम के आने के बाद आई हैड सिम्टम्स, राइट? आई हैड सिम्टम्स एंड आई टेस्टेड पॉजिटिव. And that those entire 7 days before COVID happened, my entire anxiety was कि because I am the face and because backend में कोई कितना भी content लिख ले, edit कर ले, until I shoot, there is no actual deliverable. So it's extremely scary. It's extremely scary if you are constantly needed for every assignment. तो हाँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दैट आल्सो मेक्स दैट लीव्स मी नो ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड. हाँ यार, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू बिकम रेगुलर यार. कि हम जो हर हफ्ते एक पॉडकास्ट निकालते हैं वो ऐसे 1-2 लोग कर रहे हैं इसलिए निकाल रहे हैं. हाँ, दोनों के ऊपर है कि यू हैव अकाउंटेबिलिटी है. शो अप एट दैट टाइम. अगर सिर्फ खुद ही अकाउंटेबल हो तो हम सबको पता है कि हम कितना निकाल रहे होंगे, कितने कंसिस्टेंट होंगे. Exactly. So I'll give an example. One of my team members, earliest employees, who basically is my all hands guy. So he does everything. So he has no set. He's a generalist of the team. Okay. Right. And he is graduating next month, and he already got an offer by this startup, which is funded by Ankur Warikoo. It's a big deal. It's this mental health app. Okay. And he rejected, saying, I want to work with this guy full time and build his personal brand. Now that pressure. That's a lot of pressure. That's a lot of pressure. कि अब एक बंदे ने exponential results के लिए बहुत ही अच्छी जॉब छोड़ दी है, अच्छा ऑफर डिक्लाइन किया. कि अब तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा यार. अब तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा. उसके लिए होना पड़ेगा. डिक्लाइन. क्या है, गधा है क्या तू? क्यों रिजेक्ट किया? तो सर नहीं ब्रो, आपके साथ काम करना है. And I'm like, that's a lot of pressure. That's a lot of pressure. But of course, that's also extremely validating that the people you spend the most time with have so much conviction. So that's also a very good drive, I think. Nice, yeah. That's a very heartwarming thing to hear as well. Yeah. बहुत ज़्यादा. Because pay-wise, right? I am not matching what they were offering. Obviously. But पता नहीं कुछ सोचा होगा उसने, मतलब मेरे को भी. But I feel like generally all the influencers, right? They are constantly just building their personal brand, which is a very power law type. Pareto principle चलता है उसमें. Like 20%, 10% of the creators will eat up 80% or 90% of the actual results, which means जो बाकी 70-80% लोग हैं, they will not make a living by just doing it.
राइट And this is मे बी something which I realized very early. हम अंडर उसके एस्टिमेट साथ कर रहे हैं, B2B मे बी शुरू द कर दिया। स्क्यू इज इवन हायर यार, मेरे ख्याल से 80-20 से भी बहुत ज्यादा हाई होगा कि 95% टाइप का Yeah, स्क्यू yeah, for sure. तो वो गेम वो चीज समझ आ गई, और बिकॉज इन्वेस्टर हो तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर भी मैंने B2B वाला काम इसलिए किया बिकॉज ये बहुत स्टेबल वाला काम है कि कल जाके अगर पर्सनल ब्रांड कभी नहीं बना, फिर भी देयर इज 100 वीडियोस व्हिच आर माय प्रूफ ऑफ वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स, दे कैन जस्ट सी एंड आई विल गेट समथिंग, कुछ तो काम मिल जाएगा। तो Nice. हाँ वो चीज है। अच्छा, switching track slightly, what are the 3 most commonly asked questions that you get from your audience? So the most common line that I use every time I stream is "We don't do that here." Is the Chadwick Boseman meme from Black Panther. We don't do that here, right? Yeah. The reason being, every day there are at least 100 messages saying, "Bro, इसमें invest किया है, कल buy करूँ या और बेच दूँ." Stock recommendation. Nice. So stock tips is something which is Yeah, एकदम everyone. वो। Second is passive income. My audience is 18 to 24 and उनको ऑफिस से पैसिव इनकम चाहिए। interest towards passive income is something which is very surprising. क्या मैं Very 2 साल surprising. बाद डिविडेंड इनकम पे चला लूंगा क्या मेरा Exactly. विप्रो 1 रुपए पर शेयर डिविडेंड देता है, क्या उससे मेरा काम चल जाएगा क्या 2 साल में? Exactly. So MRF के अभी एक शेयर में 70,000 के शेयर में 3 रुपए का डिविडेंड दिया है, right? And more than that, आप 70,000 रुपए कमाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए पहले वो तो फिगर आउट करो कि how will you earn and make that active income before making money without even working. So that's the second most common question. And I think at least हमारा जो community है उसमें तो काफी लोगों को ये चीज समझा दी, because I'm constantly reiterating the same thing that इतने सारे इन्वेस्टिंग वीडियोस बनते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे टू मेक मनी. द रियल वे इज टू जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम in yourself, acquiring skill sets and then increasing your SIP from 5K to 50K. तब अगर 2% कम भी रिटर्न आ गया ना, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ा ही होगा. That's what people don't understand. या ये अभी जब अदानी विल्मार का IPO आया था ना, तो मैं 2 दिन के लिए बहुत ऐसा, मेरे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग सा सीक्वेंस हो गया कि बिकॉज आई न्यू कि भाई अदानी का आया हुआ है और विल्मार मतलब थोड़ा बहुत ठीक भी है, तो ऐसा कि यार अभी मेरे पास बस 1 लाख रुपए ही हैं इन्वेस्ट करने के लिए. अगर मेरे पास 1 करोड़ होते तो मेरे 50 लाख बन जाते, मतलब या 10 करोड़ होते. फिर मेरे को लगा यार इस थॉट प्रोसेस का ना कोई एंड नहीं है कि 1 करोड़ होते तो लगता है कि भाई अच्छा 2 साल का एक्सपेंस निकल गया, तो लगता है यार अगर 10 करोड़ होते तो 10 साल का एक्सपेंस निकल जाता. Exactly. उसका कोई देन आई केम बैक डाउन. भाई तू अभी गैम्बलिंग माइंडसेट में मत जा, तू वापस आ जा, तू लोगों को बताता है कि भाई कैसे काम डाउन रहो, कम बैक. तो यार वो क्रिप्टो वाली स्टोरी ना, ये भी क्रिप्टो में देयर विल ऑलवेज बी एग्जांपल्स वेयर you will find rags to riches stories, but nobody will tell you the stories where people have gone from here to ekdam bust in it's like news follows views, no? So of course all the sensationality will be covered. So like एक चीज है, मैंने एक बुक में पढ़ी थी, उसमें ये था कि in the last 40 years the number of deaths per 1 billion airline miles is 1. लास्ट 40 साल में 1 डेथ पर 1 बिलियन एयरलाइन माइल्स. बट मैं जब भी लोगों को पूछता हूँ पोल में कि व्हाट डू यू थिंक लास्ट 20 सालों में एयरलाइन इंसिडेंट्स बढ़े कि कम हुए, सब हमेशा बोलेंगे ज्यादा हो चुके, बिकॉज न्यूज में कभी ये नहीं आता कि एयर इंडिया फ्लाइट सेफली लैंड कर गया. एग्जैक्टली, वो कभी न्यूज में नहीं आने वाला. न्यूज में यही आएगा कि MH370 इज मिसिंग. यार इसमें मैं आपको एक वो दूंगा, इफ यू फील लाइक रीडिंग ना, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एक बहुत ही मस्त बुक है, नोबेल प्राइज उसमें. हाँ वो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड अवेलेबिलिटी बायस ना, कि भाई कि न्यूज बस उसी की मिलती है जो डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो हम लोग के दिमाग में बायस बन जाता है कि भाई बहुत खतरनाक है. ऐसी स्टॉक्स में कि भाई ये ब्राइटकॉम ग्रुप 2 रुपए से 200 रुपए पहुंच गया, तो सबको लगता है भाई स्टॉक मार्केट में पैसे ही पैसे है. अब वो सारे लोग न्यूज नहीं आके बता रहे ना कि भाई रिलायंस कैप में भी इतने लोग थे. वो होता ही है. अगर आपको कोई बोलेगा कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है,
उसके बाद आपको हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सिर्फ बजाज फाइनेंस दिखेगा। अवेलेबिलिटी बायस तो है ही है, हाँ 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 बहुत बड़ा फ्लॉ है। सही। Yeah, I'm sure speaking of availability bias, so we were speaking initially कि तुमने भी 2020 में ही स्टार्ट किया कंटेंट बनाना, हम लोग भी पहले बात कर रहे थे, हम लोग ने जब कोविड शुरू हुआ तभी हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू करने का सोचा था। सो एक बहुत ज़्यादा मशरूमिंग ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हो गया है ना इन स्पेशली इन द लॉकडाउन एरा। हाँ, फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा। स्पेशली, तो जहाँ देखो ज्ञान पेल रहे हैं लोग। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू टेक एज एन इंडिविजुअल, एज अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर टू कीप योर स्टफ unique or different from the mushrooming of all these content creators? Okay, so it's also because of my first content experience, which is working with Tanmay. Like हम लोग का constant focus बहुत ज़्यादा story telling में रहा है, because मतलब हमें पता है कि story telling बहुत important है. We have to, like, people understand more via emotions than facts. बहुत ही simple चीज़ है. तो constant story telling में हमेशा focus रहा है. Like 2 साल हम अभी भी कंटेंट बनाते हैं ना, हम एक स्टोरी डिसाइड करते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा. एंड सेकंड इज ऑथेंटिसिटी. दैट स्टोरी टेलिंग कम्स फ्रॉम हिज 10-15 years of experience just writing stuff, right? And knowing के what is the content that will sell, क्योंकि हम लोगों को तो information पता है ना खाली, but he knows it from the perspective that what will keep people attached here. Exactly. And I feel that मैं मतलब ये बोस्ट नहीं कर रहा, बट मेरी लाइफ में एक चीज जो सब बोलते हैं वो ये कि मैं थोड़ा फनी हूँ, ठीक है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा है. तो ये चीज मेरे को बचपन से बोला जा रहा है. एग्जैक्टली. एंड तो वही है, मैं अभी भी अपना स्ट्रीम करता हूँ. आई ट्राई टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. एंड 1 घंटे में मैं कॉन्स्टेंटली जोक्स मारते मारते फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ. आई फील दैट in this era of content creators, the number of content creators who have become extremely big, जो अभी बहुत सारे, ज्यादातर इंस्टाग्राम वाले जो जिनको अपने ऑडियंस को 60 seconds की स्टोरी बतानी है. Now how do you retain your audience for 1 hour when you are interesting yourself? Your content can never be the product. I am the product of my own channel. People have to care about me. People have to make jokes about me. So that's the thing. I'm keeping it extremely authentic. I'm just mixing fun, humor plus finance. And the reason why I know this works is because I have actually run a meme page, Clueless About Money, jo hai 0 to 91K. I have created every piece of content there. Nice. And आज के दिन बहुत validation ये मिलता है कि आप स्मॉल केस देख लो, आप DCX देख लो, आप कोई भी फाइनेंस ब्रांड देख लो, सबके सोशल मीडिया में अब मीम्स चलते हैं. मीम्स है, या वो मीम्स है, और ये चीज हमने शुरू की है. तो ये चीज है कि हाँ, वैलिडेशन है कि फनी नस पकड़ना, लोगों की नस पकड़ना आता है, ऐसा लगता है. अगेन कंडीशन भी ऐसा लगता है. I can be absolutely wrong and just be in myself, be full of myself, but ऐसा लगता है. नहीं, सिर्फ लगने वाली बात नहीं यार अंशु, हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं आज तो, और ऐसा क्या 1.25 घंटा हो गया अब तक बात करते हुए, ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार बात हो रही है. सो वो रिलेटेबल वाला पार्ट, वो कनेक्टिंग वाला पार्ट तो है तुम्हें यार, वो तो और वो मतलब वो हमें भी लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन फ्लो कराते हैं. तो वही है ना, म्यूचुअल ही होना पड़ेगा ऐसा, वरना 1 person would be speaking more, तो पता चल जाता है. हाँ. तो यार वी हैव यू ऑन द चैनल, तो थोड़ा बहुत 1-2 मार्केट की चीजें तो पूछनी ज्ञान ले लेते हैं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन IPOs, लाइक जो अभी पेटीएम, जो IPO के टाइम पे उनके फाउंडर्स ने बोला था दैट वी हैव केप्ट सम वैल्यू ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, कि अभी तो हमने सस्ता वो निकाला है. सो पेटीएम, नाइका, जोमैटो, ये सारे जो अब आ रहे हैं, पॉलिसी बाजार आया, एंड अब जो रुक गए हैं थोड़ा, ओयो वाले भी आने वाले थे, बट आई थिंक दे सॉ कि अक्टूबर 2021 से क्या हो रहा है कि थोड़ा रुक जाओ. So what are your views on it? Because I thought कि जब वो आ भी रहे थे, I didn't invest in it. I recommended friends कि नहीं करो, रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा hype was because of the marketing, क्योंकि marketing game of these companies is amazing. तो IPO के टाइम पे भी बहुत सी मार्केट का, तो आपके ये सारे जो अब IPOs आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स कमिंग इनटू द रियल वर्ल्ड, वेयर तुम्हें प्रॉफिट करना ही पड़ेगा तभी तुम चलोगे, तो what are your views here? हाँ. So like the names which you took, I have different thoughts about
each one Okay. of them, right? तो हम Zomato से start करते हैं. Simple game ये है कि आज के दिन Zomato और Swiggy एक perfect competition में, right? The customers are not at all sticky. Our only concern is किसका कूपन बड़ा है, सही right? में किसको किसका सस्ता में कूपन आएगा? बड़ा है. कोई पिन कोड ऐसे होते हैं जिसमें Zomato बड़ा है, कोई पिन कोड में स्विगी बड़ा है. और ये चीज अगले 5-7 साल में मुझे नहीं लगता चेंज होगी, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स हेवीली फंडेड है, दोनों ही प्लेयर्स अच्छे से प्लेस्ड है, ठीक है. विच मीन्स दैट ये लोग कब प्रॉफिटेबल होगा पता ही नहीं. प्लस Amazon के भी प्लान्स थे, अभी डीले हुआ, बट आईपीओ के टाइम Amazon के भी प्लान्स थे कि Amazon फूड आएगा. बैंगलोर में ऑलरेडी पिवट चल रहा है इधर, ठीक है. सो एक और प्लेयर विद सो मेनी रिसोर्सेज एंड ऑलरेडी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन. तो 3 प्लेयर एक मार्केट में कॉन्स्टेंटली चलेंगे, कितना प्रॉफिटेबल होगा. तो दैट्स द थिंग कि हाँ, आई थॉट कि Zomato was not the best. Second is Nykaa. Nykaa I am extremely bullish because मार्जिन बहुत हाई मार्जिन गेम है, बहुत हाई मार्जिन गेम है ब्यूटी, ठीक है. उसके बाद दूसरा ये है कि अपने बॉडी में ना, जैसे लिप बाम है, मैं ये लिप बाम थोड़ा देख के लूंगा क्योंकि ये मेरे लिप्स में जा रही है. हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, एलर्जी हो गया तो इट विल अफेक्ट माय बॉडी. सो वेरी हाई ट्रस्ट गेम. And because Nykaa has created the beauty e-commerce in India 8 साल से, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है. प्लस अभी खुद के लेबल्स ला रही है, अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो Amazon जैसे अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर पुश करता है, Nykaa भी करता है, which means that their margin directly will go from e-commerce to their own beauty line. 45% से direct 70% जंप कर लेगा. So मैं Nykaa में बहुत ज्यादा बुलिश है. एंड ये बहुत सही चीज बोली आपने, वो ट्रस्ट वाली चीज ना, कि बिकॉज आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई Nykaa वाज एबल टू इवन बीट Amazon, मतलब जो कि इतना बड़ा प्लेयर है इन कॉस्मेटिक्स वाला फील्ड. Exactly. And I spoke to my sister and she's like कि on every product expiry date लिखा हुआ है कि best before 6 months. तो इस लेवल के डिटेल में then the trust factor will always increase, always go up. Right. And Paytm, Paytm ऐसा था कि I think it's a player who has lost the battle. 2016-17 में उनका valuation था $16 billion when they were the player. Then UPI came, PhonePe and Google Pay actually took their market and now they are not as relevant as they were 4 years back. But उनका valuation बढ़ गया. So I was like ये तो मैं इसमें invest नहीं कर रहा. So I was away from बहुत हॉच-पॉच हो गया यार उनका ना, कि हर चीज में घुसने की कोशिश करिए और किसी एक चीज का भी मास्टर टाइप नहीं बने. They wanted to become the one-stop shop for all the amenities, all the services, but वो फिर तो उनका basic USP was their wallet, right? Payment gateway था उनका basic USP. तो and आज के दिन Paytm का UPI is better than PhonePe. Yeah, it is better, but अब customers are extremely sticky, right? Because Paytm से UPI में switch करना was basically you are reducing friction. Because पहले wallet में पैसा डालो, wallet से you have to ensure if that person also has the wallet. UPI is directly account to account. Friction कम कर दिया. अब एक छोटे से change के लिए of the same feature, I don't think लोग switch करेंगे. But of course, guys, these are my thoughts. हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी ना डिस्क्लेमर डाल देंगे. ऑल द थॉट्स आर ओनली पर्सनल थॉट्स फ्रॉम अंशुमन, पर्पसेस ओनली, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. डू योर ओन रिसर्च ऑलवेज. यार पता है मैं अभी आज ही सोच रहा था ये कि ना कि हम ऐसे सारी वीडियोस में होता तो है, बोलते रहते हैं कि डू योर ओन रिसर्च लोगों को, ताकि बिकॉज ऑफ द सेबी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कि भाई तुम एडवाइस ऐसे नहीं दे सकते, तो बोल देते हैं. लेकिन भाई तुम जिन लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो ना, उनको ये पता ही नहीं है कि रिसर्च क्या करना है. So I think that is also a factor कि जहाँ पे है कि भाई अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पिक करना है तो तुम्हें रिसर्च क्या करना है वो भी बताओ लोगों को. But that's a good disclaimer to have. It takes time and disclaimer इसलिए important है because मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि मैं अगर तुम्हें एक स्टॉक टिप दूंगा, उसके बावजूद I can make sure that I'll make more money in that. The reason being I invested in it after researching and after having enough conviction. तो अगर कल जाके 5% गिर गया तो मैं वो नहीं बेचेगा, मैं ज्यादा खरीदेगा. But if the stock goes down by 5% tomorrow, two things will happen. पहले तुम मुझे गाली दोगे और second तुम उसे लॉस में बेच दोगे. So I always say this. It's like a every stream affair because वही questions आ रहे हैं.
अदानी विल्मर 60% बुक कर लिया, अभी बेचना चाहिए कि खरीदना, और हाँ। खरीदो। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बताने वाला ये चीज। हाँ आई थिंक हमको 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट बात करते हुए। अंशुमन Yeah. पता भी नहीं चला यार कहाँ 50-55 मिनट निकल गए। इट वाज अमेजिंग स्पीकिंग टू यू। एज आई सेड अर्लियर, ऐसा लग रहा था कि किसी दोस्त से गप्पे मार रहे हैं बैठ के, ऐसा लग रहा है काफी पहली बार मजा। बात कर रहे हैं। एंड kudos to you man, मतलब you genuinely have this ability to warm up all the people you're talking to, and probably that's why you are such a budding name in the streaming industry as well, and अरे, people अरे। relate to you man. Thank you, And thank lovely you, speaking to you man. I hope तुझे भी थोड़ा सा मजा आया हो यार। दिमाग मजा में आया, बहुत that's what मजा आया। she said joke आया था, but I restrained myself till now. Go for it, go for it, go for it. But नहीं, वही yeah, कि thank वही you बोल रहे थे so ना, much. you have the ability to warm up people around you. Like, yeah, that's what she said. Fun. So everyone who's watching, go follow Anshuman on Twitter at Anshuman_306, on Instagram at Anshuman Sharma, YouTube channel Anshuman Sharma. So go follow his stuff and उसका brand build करो यार, मतलब जो भी कोई देख रहे हो, so help him build his personal brand now, and not that he requires any validation or push from our side, but still for whatever we can, No. we'll love to see his brand grow. And it was Every awesome nut speaking to helps. you man. Yeah, I had a lot of fun. मजा आया काफी candid, बहुत मजा आया। Yeah.